Students, today we are discussing about the electric charges and fields. First, we have to consider the Coulomb's law. Coulomb's law considers the forces between the 2-point charges. Here we are considering 2-point charges Q1 and Q2. They may be equal and opposite charges, or you can say they may be equal charges. Have distance between R. According to Coulomb's law, force is directly proportional to the product of the charges. We are considering two charges Q1 and Q2. The product of these two charges are directly proportional to the forces. Similarly, force is inversely proportional to the square of the distance between these charges. When we are combined these two equations, we can say that force is directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of the between two charges. You can say when we remove the proportionality, we get some constant that is known as proportionality constant. These proportionality constant depend upon the medium in which charge is placed. Where K, if you are using the medium vacuum or air, the value of this proportionality constant will be 9 into 10 to the power 9, and the unit of K is Newton meter square per coulomb raised to power 2. K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी हम लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको मैंने पहले ऊपर ही बताई है क्या होती है 9 into 10 की पावर 9. In MKS system, the unit of epsilon naught is kg raised to power -1, meter raised to power -3, second raised to power 4, ampere square. You can say K can be used 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught you can use in play when you are using vacuum or air. But in case of you are using wax, some other medium like glass, wax, paper, oil, then epsilon naught will be epsilon. This is called absolute permittivity. So, according to Coulomb's law, the two stationary point charges repel or attract. Here already discussed, it may be same charges, it may be opposite charges. If we are using same charges, suppose we are using positive charges, so there will be some reflection. Yeah, there are two forces are there. One is attractive force and second one is repulsive force. You are using same charges, so that means you are using repulsive forces are there. When you are using opposite charges, someone is positive or someone is negative, so that means some attraction force will be exist between these two charges. So according to Coulomb's law, the two stationary point charges repel or attract each other with a force which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. These forces along the line joining the two charges. So, all the Coulomb's law have been discussed in this chapter. Now we are going for the another. Next topic is इलेक्ट्रिक डायपोल. बहुत समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या. जब भी हम किसी दो चार्जेस को इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी थोड़ी दूरी के बाद प्लेस करते हैं
तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड at a short distance. Here we are considering equal and opposite charges, negative Q, positive Q. The distance between these charges is 2L. तो they are forming the electric dipole. जैसा कि मैंने बताया, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को थोड़ी दूरी पे जब हम प्लेस करते हैं तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन्हीं डाइपोल को किसी चार्ज और उनके बीच की दूरी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट फॉर्म द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस आर 2L. These 2L is multiplied by some charge is known as electric dipole, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, दोनों की बीच की डिस्टेंस है 2L। बीच का पॉइंट हमने लिया है मोमेंट के लिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट जब हम मोमेंट लेंगे तो हम ये देखेंगे पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस Q इंटू 2L इज कॉल्ड P, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ अब हमको ये देखना है, नेक्स्ट टॉपिक में ये देखना है कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? एक एंड पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। यहाँ आप देख रहे हैं दो एंड पॉइंट है, एक नेगेटिव क्यू पे, एक पॉजिटिव क्यू पे। तो किसी एंड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करनी। तो हम दोनों केसेस को लेके चलेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो पहला केस है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब हमने देखिए इसमें हमने क्या किया है, सेम चीज जैसा कि पहले भी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। दो पॉइंट ले लिए, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। दो पॉइंट कौन कौन से हैं? ए और बी, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L, जैसा कि डायग्राम में आपको हमने ऊपर भी दिखाया हुआ है। सेम चीज 2L डिस्टेंस आपने ले ली। बीच में है इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको हमने O पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी एक्सिस के ऊपर हमने आगे साइड पे एंड पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया है P, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस डाइपोल के कारण। तो इस डाइपोल पे ये जो पॉइंट हमने इस एक्सिस पे कंसीडर किया है, तो इस पे आप देख रहे हैं एक लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरा लिखा है E2। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो मिल रही है दैट इज द आउटसाइड ऑफ द एक्सिस, बाहर की तरफ जा रही है। ये किसके कारण हो रही है? पॉजिटिव क्यू के कारण। इनसाइड किसके कारण आ रही है? माइनस क्यू के कारण। दिख रहा है आपको? तो इस पूरी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा, दैट इज E1 माइनस E2। तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए E1 माइनस E2 को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E1। अब हम इस पॉइंट पे E1 की वैल्यू निकालेंगे। तो E1 जानते हैं कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q1 होता है। F की वैल्यू आपने रख दी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1। Q1 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बच रहा है आपके पास। ठीक है, सेम सिमिलरली आपको यहाँ E1 निकालना है। यहाँ दो चार्जेस है, माइनस Q और प्लस Q। एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। आप देख रहे हैं, जब आपने इसको Q1 लिखा, इसको Q2 लिखा, डिवाइडेड बाय Q1 किया तो माइनस Q कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? पॉजिटिव Q। तो ये फार्मूला निकल के आया अकॉर्डिंग टू दिस, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। पॉजिटिव Q है तो Q
अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर पॉजिटिव क्यू से पी तक की दूरी है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरी दूरी में से ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, तब आपको पॉजिटिव क्यू से पी तक की दूरी मिल जाएगी। आपने ये जो पी फाइंड आउट एज्यूम किया है वो कहां से किया है? इक्वेटोरियल पॉइंट से उस पी पॉइंट तक की दूरी जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज क्या होगा? आर माइनस एल, क्योंकि ये टू डिस्टेंस कितनी थी? 2L थी, तो ये कितना निकला है? आर माइनस एल। सो यू गेट द result E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L का whole square. Similarly, you have to find the value of E2. That will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L का whole square. So you get the value of E1 and E2. Now you have to find out the resultant value of the intensity of the electric field on point P. So you get the value of E is equal to E1 minus E2. By putting these value of E1 and E2, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L का whole square minus Q upon 4 pi epsilon naught R plus L का whole square. By taking the common Q upon 4 pi epsilon naught, you get 1 upon R minus L का whole square minus 1 upon R plus का L square. Now taking the LCM of these and simplified it by opening these bracket and applying the formula a plus b का whole square and a minus b का whole square, you get the value of E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 4 RL R minus R square minus L square का whole square. You can see that. Now this Q will be inserted by opening these bracket. 1 upon 4 pi epsilon naught, Q को हम अंदर ले गए और 4 को हमने लिख लिया 2 into 2Q into LR. Since we know that dipole moment Q into 2L is equal to P. Now these will be converted in the form of small p, that is the dipole moment. You get the value of 1 upon 4 pi epsilon naught into 2pr r square minus l का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने कूलम्ब्स लॉ जब डिस्कस किया था, आर क्या था? आर जो थी जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, वो उस पॉइंट से वहां तक की दूरी थी। और एल क्या चीज थी? एल क्या चीज थी? जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी थी, और जो कि बहुत ही स्मॉल था। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आर। सो वी आर निग्लेक्टिंग द एल, दिस एल स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r raised to power 4। r से r की पावर 4 कैंसिल हो गया। Now you get the value of 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. Okay. Now second आता है, second case. Now you have to calculate the intensity of electric field at a point on the equatorial line of dipole. अब आप देखिए, तो चार्जेस लिए थे हमने, जैसा कि पहले बताया गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली थी? 2L। ये बीच में पॉइंट हमने O ले लिया, तो ये डिस्टेंस L हो गई, यहां से ये डिस्टेंस L हो गई। अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट P पे जो डिस्टेंस R पे है, हमने यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमने ये एंगल एज्यूम कर लिया थीटा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, you get the value of this PV under root R square plus L square. Similarly, you get the value of this AP is under root R square plus L square. अब प्लस क्यू के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1 है, और माइनस क्यू के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E2। तो इस P पॉइंट पे इसका क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा, दैट इज E। तो आपको
ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये ई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी वो किसका होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब आप देखिए, इसको निकालने के लिए आपको E1 E2 को रिजॉल्व करना होगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। आपने इसको रिजॉल्व किया, देखिए E1 ये थीटा एंगल था, जब आपने E1 को रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो ये क्या आ गया, E1 cos थीटा और ये आ गया E1 sin थीटा। सिमिलरली जब आपने E2 को रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तो ये क्या आ गया, E2 cos थीटा और ये आ गया E2 sin थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज in horizontal direction and sum of all the forces in the vertical direction must be equals to 0. When you are equating the equation, sum of the forces in vertical direction must be equals to 0. E1 sin theta minus E2 sin theta equals to 0. Sum of the all the vertical forces must be equals to 0. So अगर आप E1 sin theta minus E2 sin थीटा इक्वल्स टू 0 तो इससे आपको मिल जाएगा E1 इजकल टू E2। सिमिलरली आप जब वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो दिस E इजकल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये कैसे होगी, 1/4πε0 Q/r² होता है। अब वो r² जो डिस्टेंस कहाँ है, इस चार्ज से यहां तक की दूरी जो क्या है √r² प्लस l² का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो ये जब आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये √ हट जाएगा तो ये आ जाएगा E1 इजकल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। सेम चीज आप E2 को भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। E इजकल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। Here you can see that you have to calculate the value of cos theta. From figure you have taken the triangle of POV. When you take the triangle POP तो इसमें cos थीटा क्या आ जाएगा, BO/BP। BO कितना है, L है, देखिए BO L है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। BP आपको कितना है, √r² प्लस l²। दोनों को आपने ये इस तरह लिख लिया और cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर ली। cos थीटा को पहले कॉमन ले लीजिए और उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इस प्रकार आपको जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E इजकल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। ये देखिए E1 E2 की वैल्यू आ गई और cos थीटा 1 cos थीटा 2 है तो 2 cos थीटा हो जाएगा तो 2 हो गया और cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, L/√r² प्लस l²। फिर आपको उसी 2QL के फॉर्म में लिख लेंगे जो क्या है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको बताई गई है सिंस 2Q × L, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी तो ये कैसे हो गया, P हो गया, P r² l² रेज़ टू पावर 3/2 क्योंकि ये √ है और ये है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, √ को आप क्या लिखते हो की पावर 1/2 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा रेज़ टू पावर 3/2। तो E इजकल टू 1/4πε0 P/r² पर l² रेज़ टू पावर 3/2। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, L जो है बहुत ही छोटा इन कंपेरिजन टू R, तो L को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये r³ आ जाएगा। देखिए r³ आ गया और यही हमको प्रूव करना था। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।